میں دبئی سے بیوی کو فون کرتا اور کہتا میری تینوں بہوؤں اور بیٹوں پر کبھی سختی نہ کرنا، ان کی ہر خواہش پوری کرنا، بیٹے کام پر جائیں تو ٹھیک ورنہ انہیں آرام کرنے دینا، ان کا جیب خرچ میں دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب بیٹے مجھے خود واپس بلا لیں گے اور میری خدمت کریں گے، لیکن اچانک مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا اور میں واپس آ گیا۔ ایئرپورٹ پر میری بیوی اکیلی مجھے لینے آئی، بیٹے ساتھ نہیں تھے۔ جب میں نے بیوی سے بیٹوں کا پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی بڑے بیٹے کو گلے لگانے لگا تو اس نے مجھے دھکا دے کر کہا، اگر 1 سال اور دبئی میں لگا لیتے تو کون سی تمہیں موت آ جانی تھی۔ چھوٹے بیٹے اور بہویں بھی مجھے کامچور کہنے لگے۔ میں روتا ہوا چھت والے کمرے میں چلا گیا اور خود کو وہاں بند کر دیا۔ 3 دن تک جب کوئی میرے پاس نہ آیا تو میں دروازہ کھول کر نیچے آیا، لیکن اللہ کا معجزہ دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی سریا سے کہا مجھے پورے 20 سال دبئی میں ہو گئے ہیں اور اب مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے مجھے کام کرنے سے روکا ہے، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں، تب اچانک میرے بیٹے اور بہوؤں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کچھ دیر پہلے چمکنے والے سب کے چہرے ایک دم سے مرجھا گئے۔ بڑے بیٹے نے گھبراتے ہوئے کہا، ابا اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر واپس کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں تو پتا ہے پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یہاں تو مرتے دم تک کمائی کرنی پڑتی ہے۔ بیٹے کی بات سن کر دوسری طرف رشید کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہمت کر کے بولا، اگر مجھے دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں مزید 5 سال یہاں گزار کر واپس آتا۔ رشید نے پیار بھرے لہجے میں کہا، لیکن سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو بیٹے اور بہویں آس پاس جمع ہو رہے تھے وہ سب دھیرے دھیرے منتشر ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد رشید نے انہیں اپنے آنے کی تاریخ بتا کر فون رکھ دیا۔ سریا فون ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی رہی۔ بیٹوں کے بدلتے چہرے ان کی نظروں سے چھپے نہ تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہا تھا جب 25 سال کی عمر میں 3 بچوں اور بوڑھے والدین کا بوجھ لے کر رشید نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ پاکستان میں انہیں کوئی ایسا روزگار نہیں ملا جس سے وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے۔ تھک ہار کر انہوں نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دبئی میں انہیں اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر انہیں کبھی پاکستان آنا نصیب نہ ہوا، بس وہیں سے پیسے بھیجتے رہے، بیٹوں کی ہر خواہش پوری کی، اچھی تعلیم دلوائی۔ جب بیٹے بڑے ہوئے تو سب کو انہوں نے گاڑیاں تک لے کر دیں۔ سریا نے یہاں ان کے والدین کی بہت خدمت کی اور اپنے بچوں کے سب لاڈ اٹھائے۔ بچے بھی پڑھ لکھ کر اچھی نوکریوں پر لگ گئے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تب بھی رشید نے خود آنے کی بجائے لاکھوں روپے وہاں سے بچوں کے لیے بھیج دیے تاکہ ان کے آنے پر نوکری کا نقصان نہ ہو۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ رشید جب بھی پاکستان آنے کی کوشش کرتا تو بیٹے اور بہویں پہلے ہی منع کر دیتے تھے، لیکن اب آخر کار بیمار ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اس عمر میں ان کا بھی اپنے پوتوں کو دیکھنے کا بہت دل کرتا تھا، اس لیے واپس پاکستان آ گئے۔ جس وقت ان کی فلائٹ ایئرپورٹ پر اتری تو ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ضرور پورا خاندان انہیں لینے کے لیے آیا ہوگا۔ ان کے بیٹے اور پوتوں نے ایئرپورٹ پر ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، سب کے سب ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ یہ سوچتے ہوئے رشید اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑانے لگے، لیکن سامنے سریا کو اکیلا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صرف وہی تھی جو دوپٹہ سر پر لیے کھڑی تھی۔ 20 سال پہلے والی سریا اور آج کی سریا میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ بدل تو رشید بھی گئے تھے، دونوں ہی جوان تھے، لیکن اب بڑھاپے میں آ چکے تھے۔ جب رشید بیوی کے پاس آیا تو سریا نے سلام کرنے کے بعد پوچھا، کیسے ہو تم؟ رشید بولا، میں ٹھیک ہوں، لیکن باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ شہباز، فراز اور عابد، وہ سب تو مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے، رشید نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ تو سریا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے فوراً سے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر لیے تاکہ رشید کو کچھ پتہ نہ چلے۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تینوں بیٹوں کو آج کام سے چھٹی نہیں ملی تھی، انہیں کوئی ضروری کام تھا، بچے بھی اسکول گئے ہوئے ہیں اور میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے تمہیں میں ہی دیکھوں گی، اس لیے میں اکیلی آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سریا نے رکشہ روکا تو رشید حیران رہ گیا، تم گاڑی لے کر نہیں آئی؟ گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، رشید نے حیرانی سے کہا۔ تو سریا بولی، 3 گاڑیاں تو ہیں ہی جی، لیکن تینوں گاڑیاں بچوں کے پاس ہوتی ہیں اور ویسے بھی مجھے تو کہیں جانا بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے پاس گاڑی رکھوں۔
घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। रशीद खामोश हो गया। घर पहुंचे तो रशीद की सोच के बरक्स घर में उसके इस्तकबाल के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही कोई जोश दिख रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? रशीद ने कहा तो सुरैया बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है, तुम खाना खाकर आराम करो, रात तक सब अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। सुरैया की बात सुनकर रशीद हैरान हो गया। लड़के ना सही, उनकी बीवियां तो घर में ही थीं, मगर कोई भी उनसे जाकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही फौरन उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे शहबाज की आवाज आई, अरे अब्बा जान, तुम वापस भी आ गए। कितना मना किया था तुम्हें आने से, लेकिन तुम भी अपनी ही करते हो। कुर्सी पर बैठे बैठे शहबाज आम अंदाज में कह रहा था। तभी छोटे बेटे फराज और आबिद दोनों उठकर जाकर रशीद के गले मिले, लेकिन किसी के अंदाज में वो जोश नहीं था जो रशीद को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की मेज की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तो बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठो अब्बा जान, यहाँ पर शहबाज बैठते हैं और शहबाज के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रशीद को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गया तो शहबाज जाकर वहाँ आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। रशीद के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। सुरैया खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई और बोली, तुम अंदर कमरे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहीं खाना दे देती हूँ। बेटे बहू का रवैया देखकर रशीद हक्का बक्का रह गया। ऐसे इस्तकबाल की तो उसने कभी सोची भी न थी। उसने हैरानी से अपने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपनी अपनी बीवियों के साथ बात करने में मसरूफ थे। सुरैया ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, तुम अंदर बैठ जाओ। ये कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी रशीद ने ध्यान दिया कि सुरैया के भी मेज से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया। कमरे में जाते ही उसने सुरैया से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? तो सुरैया खामोश सी हो गई। फिर उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि तुम अभी कुछ वक्त और दुबई में गुजार लो। फराज कारोबार करना चाहता था तो उसके लिए उसे रुपए पैसे चाहिए थे। शहबाज को भी एक नया प्लाट खरीदना था, उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए थे। इसलिए तुम्हारे जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। सुरैया बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उसने किया, मगर रशीद का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। उसने कहा, सुरैया, मैंने जिंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम सबके साथ गुजारूं। सुरैया भी खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद जब रशीद का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो सुरैया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे, सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख सुरैया ने कहा, बेटा अपने अब्बा के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई हैं और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर डाले थे, इसलिए अम्मा जी तुम ऐसा करो, अब्बा जान को बाहर से कुछ मंगवा दो। अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। सुरैया सोचने लगी कि अगर वो ये बात अंदर जाकर रशीद को बताएगी तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। उसने सोचा, छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए सुरैया धीरे धीरे चलती हुई छोटे बेटे आबिद के कमरे के पास आई और जैसे उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से आबिद की आवाज आ रही थी, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अब्बा जान वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त करो, मैं तो खुद उनकी हरकत से तंग हूँ, इतने साल उनके बगैर ही जिंदगी गुजारी है,
मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे प्लाट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जूं तक रेंगी हो। अपनी अय्याशियां करके खुद वापस आ गए हैं। बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर सुरैया हैरान रह गई। यहाँ तो सब उसके और रशीद के खिलाफ हो गए थे। वो अब क्या कर सकती थी। खामोशी से अपने कमरे में चली आई। रशीद जो खाने के इंतजार में बैठा था, सुरैया को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गया। वो उसके पास आकर बैठ गई तो उसने कहा, खाना खत्म हो गया, तुम ऐसा करो, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। सुरैया ने शर्मिंदा होते हुए कहा तो रशीद के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठा और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया। गलियों का तो उसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उसे होटल मिल गया। वहां से खाने के नाम पर उसे पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली, जो वो घर ले आया। वो रोटी ना तो रशीद से खाई गई और ना ही सुरैया से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को रशीद के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का रशीद को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सब उससे ऊपरी दिल से बात करते थे। उसका दिल चाहता कि वो उनसे पूछे कि 20 साल जो उसने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देख रहे थे। शहबाज भी उनसे कुछ फासले पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी फराज अंदर आया और बोला, अरे शहबाज भाई, अपने सामने वालों की कोठी देखी है, कितनी सुंदर बन गई है, पूरा मार्बल लगवाया है उन्होंने। कहते हुए फराज शहबाज के बराबर में बैठ गया तो शहबाज भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसा ही शानदार हो, लेकिन न जाने हमारे अब्बा जान को क्या सूझी कि मुंह उठाकर पाकिस्तान वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहाँ रुककर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने अपने रहने के लिए अच्छा सा घर बना सकते थे। शहबाज ने अपने अब्बा जान की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा तो रशीद धीरे से बोला, बेटा, मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया है, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं दुबई में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या जरूरत है। रशीद का इतना कहना था कि उसके बड़े बेटे शहबाज ने झिंझलाकर कहा, अब तुम हमारी कमाई पर भी नजर रखोगे। पाकिस्तान में मिलता ही क्या है, तुम्हें अच्छी तरह पता था। मैं इतने अरसे से बिजनेस करने की सोच रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन तुम तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम यहाँ पर अयाशी के साथ चारपाई तोड़ते रहोगे। गुस्से से कहता हुआ शहबाज अपने कमरे में चला गया। फराज भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया। उसे अंदाजा न था कि बच्चे उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने उस अंग्रेज बॉस को फोन मिलाया, जिसके पास वो पिछले 20 सालों तक काम करता आया था। उसे याद था कि उस अंग्रेज ने पाकिस्तान आने से कितना मना किया था। उसने दबे लफ्जों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त रशीद ने उसकी एक न सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का रवैया देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। उसने अपने बॉस से दरखास्त की कि वो दोबारा दुबई जाकर उसके पास काम करना चाहता है। ये सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसकर बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 वक्त की रोटी देने से भी मना कर दिया है? रशीद खामोश हो गया। वो अच्छा आदमी था और उसकी रशीद से 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए उसने रशीद की बात मानकर इस उम्र में भी उसे अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फोन बंद करके रशीद खामोशी से उठा और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? उसे बैग पैक करता देखकर सुरैया ने रोकते हुए कहा तो रशीद ने उसे सारी बातें समझा दी कि उसने फ्लाइट बुक करवा ली है, शाम को वो दोबारा दुबई चला जाएगा। उसने कहा तो सुरैया सर झुकाकर रह गई। कितने अरसे बाद वो वापस आया था और अब दोबारा जा रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी रशीद अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकला तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा दुबई जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फोन करके बुला लिया है।
रशीद ने संजीदगी से कहा तो अचानक सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई। शहबाज जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था वो एकदम उठा और रशीद के गले से लगता हुआ बोला, यकीन नहीं होता अब्बा जान, ये तो बहुत खुशी की खबर है। पहले बताया ही नहीं कि तुम जाने वाले हो, वरना हम तुम्हारे लिए शानदार पार्टी रखते। सब बेटे उसके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें करने लगे तो रशीद भी बस मुस्कुराकर रह गया। इस प्यार की सच्चाई क्या थी ये तो वो भी देख चुका था। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गया। सुरैया भी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। शहबाज फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। फराज भी बोल रहा था कि जैसे अब्बा जान ने पैसे भेजे वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सुरैया खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब रशीद दुबई से रुपए भेजे, लेकिन अब रशीद ने घर में फोन करना बंद कर दिया था। वो फोन अगर करता भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करता ताकि सुरैया के अलावा कोई उससे बात ना कर सके। बच्चे पूछते, अम्मा अब्बा जान को वहाँ जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं, मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर सुरैया चुप रह जाती, कुछ ना बोलती। इसी तरह 6 माह गुजर गए, लेकिन रशीद ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उसके तीनों बेटे झुंझला गए। एक दिन शहबाज ने कहा, यार फराज, अब्बा जान को फोन करके पता तो करे आखिर वो गए कहाँ हैं। मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुरैया भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। 6 माह का वक्त खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। शहबाज मजबूरी भरी नजरों से उस कोठी को देखता रहा। तीनों भाइयों की एक ख्वाहिश थी कि वो ये कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन शहबाज उठा तो हैरान रह गया क्योंकि कोठी का दरवाजा खुला था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। शहबाज के मुंह से उदासी भरी आवाज निकली तो बाकी के बेटे बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए और हसरत भरी नजरों से उस कोठी को देखने लगे जहाँ कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतारकर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। शहबाज की बीवी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली, लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कितना मंगवाया है। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा न हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को शहबाज की बीवी समीना खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गई तो समीना ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या बात है आंटी जी, आज क्या चाहिए तुम्हें? तो शर्मा आंटी हंसने लगी, अरे नहीं भाई, अब तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है, मैं तो सुरैया से मिलने आई थी। सुरैया सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है तो मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर समीना एकदम चौंक उठी और बोली, क्या कहा तुमने? अम्मा जान कहाँ गई हैं? सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई, वो तो यहीं। बोलते बोलते समीना अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से सुरैया घर में कहीं दिखाई भी नहीं दी। उनका वजूद इस तरह बेमकसद था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली भी हैं या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं? सुबह ही तो सुरैया ने ये सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम की है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवाकर अंदर सेट करवाया है, बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है। आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है। भाई रशीद के दोबारा दुबई जाने से तो ठाट बाट आ गई है, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। शर्मा आंटी खुशी से चौंकते हुए कह रही थी और समीना पर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा। सब धीरे धीरे शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। फराज ने भागकर अम्मा के कमरे में देखा तो वहाँ सुरैया नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। शर्मा आंटी मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गई। सबने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। अम्मा ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी अम्मा की कोठी है, तो अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद अम्मा ने हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक शहबाज ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।
सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। बाहर निकले तो कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो अम्मा अब्बा को ऐसे ही समझते थे, लेकिन अम्मा ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, शहबाज ने खुशी से कहा। और सब लोग उस कोठी की तरफ चल पड़े। अंदर जाकर देखा तो सुरैया महंगी साड़ी पहने एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे? सीधा अम्मा के पास चलो, वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगी, शहबाज ने फख्र से कहा। और सब लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधे सुरैया के सामने जाकर खड़े हो गए। अम्मा, तुमने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी सालों पुरानी ख्वाहिश थी, तुमने तो हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। तो सुरैया धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असल मालिक तो वो हैं। सुरैया ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में रशीद चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े एहतराम के साथ मिल रहे थे। अब्बा जान, अरे तुम कब वापस आ गए और तुमने ये कोठी कैसे खरीदी? शहबाज के मुंह से निकला। तब तक रशीद भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, शुक्रिया अब्बा जान, तुमने दुबई वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि तुम हमारे लिए ये कोठी खरीद सको। मुझे पता था कि तुम ये सब जरूर करोगे, फराज ने कहा। तो रशीद मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये घर तो मैंने अपने और सुरैया के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और सुरैया के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल इसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं, तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ, इससे ज्यादा रुकने की तुम्हें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर रुखसत हो गए, लेकिन वो तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ अब भी एक तरफ कोने में खड़े थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खा लीजिए, नहीं तो मालकिन और साहब के सोने का वक्त हो गया है, घर को बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए अब अपनी इस मामूली सी नौकरी से घर का खर्च चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे। धीरे धीरे घर के खर्चात बढ़े तो घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन शहबाज ने मुंह बनाकर कहा, क्या यार, आज फिर तूने दाल बना दी, पिछले 2 दिन से दाल ही तो खा रहे हैं। तो समीना बोली, तुम्हारी सैलरी खत्म हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, ये तो फराज भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है, ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे, जैसे तैसे करके वो पतली दाल खाने ही लगे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो आबिद झुंझुलाता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुनकर आबिद ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर सुरैया खड़ी थी। जैसे उसने आबिद को ट्रे पकड़े देखा, वो फौरन अंदर चली गई। आबिद को भी एक झटका सा लगा कि अम्मा अब्बा ने तो उसे कब का रिश्ता तोड़ लिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो हैरत से ट्रे लिए कर अंदर चला आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अम्मा ने तो ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह की डिशेस रखी थी। आबिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा का दिल नरम हो गया है, चलो सब उनसे माफी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर वो सब सुरैया के घर के सामने आ खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। सुरैया ने भी उन्हें आता देख लिया था। उसने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर खामोशी से दाईं तरफ रख दी। तीनों भाई जाते ही अम्मा के पांव से लिपट गए। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने तुम दोनों का ख्याल नहीं किया।
لیکن اللہ کے لیے ہمارے حال پر رحم کرو، ہم اب تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تینوں بھائی گڑبڑا رہے تھے۔ بچوں کی ایسی حالت دیکھ کر ثریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی ماں تھی، بچوں کے بغیر اتنے عرصے سے کیسے گزار رہی تھی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ پوتے نواسے بھی دادی دادی کرتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ اپنے بچوں کو تو شاید وہ معاف نہ کرتی، لیکن پوتوں کی شکل دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی بیٹا، اس گھر میں تم لوگ اس وقت تک نہیں رہ سکتے جب تک تمہارے ابا جان تمہیں معاف نہ کر دے، اور وہ تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سنتے۔ ثریا نے بے بسی سے کہا، تو ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ روتے ہوئے شہباز نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ فراز اور عابد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھلے دروازے سے رشید اندر آ رہے تھے۔ سفید رنگ کے سوٹ میں ان کی شخصیت بہت روبدار لگ رہی تھی۔ تینوں بیٹے اپنے آپ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ رشید کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ان تینوں کے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ رشید غصے سے بولا، لیکن ان کی آواز دکھ کے مارے لڑکھڑا رہی تھی۔ تبھی اچانک ثریا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کرو تم، میں اپنے بچوں سے اب اور زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اگر تم نے دبئی میں کچھ وقت پریشانی میں گزارا تو آج اس کا پھل بھی مل چکا ہے۔ اب اپنے بچوں پر رحم کرو، ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ان سب کی حالت دیکھو، وقت سے پہلے بوڑھے دکھنے لگے ہیں۔ میرے بچوں پر میرے گھر کے دروازے بند نہ کرو۔ کہتے کہتے ثریا کا گلا بھر آیا۔ رشید جیسے خاموش ہو گیا۔ تبھی شہباز نے اشارہ کیا اور تینوں بھائی لپک کر ابا کے پاؤں میں جا گرے۔ ابا جان، ہم تب تک تمہارے پاؤں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمیں معاف نہ کر دو۔ فراز گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ رشید کچھ پل تو اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہ سچ تھا کہ ایک باپ کو بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا کہ ایک ماں کو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے تینوں بیٹوں کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ تینوں بھائیوں کے چہرے خوشی کے مارے کھل اٹھے۔ جاؤ اپنا سامان اٹھا کر لے آؤ، اب تم لوگوں کو غریبی میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رشید کی آواز سن کر یوں لگا جیسے اس نے کسی مردہ جسم میں جان ڈال دی ہو۔ تینوں بھائی اگلے آدھے گھنٹے میں ہی اپنے گھر سے سارا ضروری سامان اٹھا کر لے آئے۔ ثریا کے گھر کا ماحول تو حیران کر دینے والا تھا۔ رشید نے تینوں بیٹوں کو نوکریاں چھوڑنے کو تو نہیں کہا تھا، مگر وہ خود تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپنے اپنے استعفے جمع کر دیے اور صبح صبح اٹھ کر تیار ہو گئے۔ جب رشید اپنے کمرے سے آفس جانے کے لیے باہر نکلا تو تینوں بچے تیار سامنے ہی کھڑے تھے۔ رشید فوراً سمجھ گیا کہ بچے اس کے ساتھ کاروبار میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، تم ایسا کرو، فائنانس کا کام میرے حصے میں ڈال دو، مجھے ویسے بھی بڑا تجربہ ہے فائنانس کے کاموں کو دیکھنے کا۔ تو رشید بھی مسکرا دیا، ٹھیک ہے، میں ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری ذمہ داری اکیلا نہیں اٹھا سکتا، مگر یاد رکھنا کہ فیکٹری کے لین دین کے کاموں میں ذرا دھیان رکھنا، کہیں پر 1 روپے کی بھی گڑبڑ ہوئی تو سارا حساب خراب ہو جائے گا۔ شہباز نے سر ہلا دیا۔ اس دن وہ تینوں ہی رشید کے ساتھ کام پر چلے گئے۔ ثریا کی بہویں ساس کے دیے ہوئے پیسوں سے خوب ساری شاپنگ کر کے لے آئیں اور اب اپنی الماری میں لٹکے ہوئے برانڈیڈ کپڑوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک دن شہباز کی بیوی خوب تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو ثریا نے کہا، بہو ذرا مجھے 1 کپ چائے تو بنا دو۔ تو بڑی بہو نے ایک نظر اپنے سوٹ اور تازہ لگی ہوئی نیل پالش کو دیکھا، اب میں ان کے لیے کچن میں جا کر چائے بناؤں، میری ساری تیاری خراب ہو جائے گی۔ اس نے من ہی من میں سوچا، مگر ساتھ ہی بگاڑ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اماں جی ابھی بنا کر لاتی ہوں، اور مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ سامنے ہی کام والی کچن میں صفائی کر رہی تھی۔ سارے کام چھوڑو، پہلے اماں جی کے لیے چائے بناؤ، اس نے کام والی کو حکم دیا اور سر پر کھڑی رہی۔ چائے بنا کر اس نے اسی کے ساتھ چائے ثریا کے لیے بھیج دی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ ایک دن ناشتے کی میز پر رشید کچھ پریشان تھے۔ کیا ہوا، تم ناشتہ نہیں کر رہے؟ ثریا نے پوچھا تو رشید جھنجھلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں ثریا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اکاؤنٹ میں لگاتار گڑبڑ ہو رہی ہے، بڑے بڑے اماؤنٹس نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں۔ لین دین کے کام میں پہلے تو کبھی اس طرح کی دقت نہیں ہوئی تھی جیسی اب ہو رہی ہے۔ ثریا خاموش سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آفس چلے گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آفس سے فون آ گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رشید کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کا ایک بڑا آرڈر کینسل ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت صدمہ لگا۔ ثریا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ شہباز، شہباز، اس نے چلا کر آواز دی۔ شہباز اندر کمرے میں اپنی بیوی کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا رہا تھا۔
क्या हुआ अम्मा? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज लगाई, लेकिन सुरैया तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर शहबाज के पास आया। ऑफिस से फोन आया था, आपके अब्बा जान को हार्ट अटैक आया है। खबर ऐसी थी कि शहबाज थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकला, मगर पीछे उसकी बीवी समीना ने जल्दी से शहबाज की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे अम्मा, तुम रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं ना, देखते हैं अब्बा जान को क्या हुआ है। फराज ने झिंझलाते हुए अंदाज में कहा तो सुरैया एकदम खामोश हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकली और मुंह बनाकर बोली, अभी अब्बा जान मरे नहीं हैं जो तुम इस तरह आंसू बहा रही हो। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरैया हैरान रह गई। रशीद अभी सिर्फ अस्पताल पहुंचे थे कि घर वालों के तेवर दोबारा बदलने लगे। सुरैया खामोश बैठी रही। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज आई। सुरैया दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे अब्बा जान ठीक तो हैं? सुरैया ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। शहबाज बोला, अरे नहीं अम्मा, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ रह जाता है। अब्बा जान की तबीयत को संभलने में काफी टाइम लग जाएगा, तुम फिक्र ना करो, अंदर जाकर सो जाओ। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ, अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा। मुझे तो अब वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहते हुए शहबाज अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद फराज बाहर निकला तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने अब्बा जान को देखने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, सुरैया ने फिक्रमंद होकर कहा। तो फराज झंझलाकर बोला, अम्मा और भी काम है दुनिया में, अपनी बीवी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब्बा जान को देखने तुम सुबह चली जाना। चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। सुरैया का दिल चाह के वो फूट फूट कर रो दे। बच्चों के ये तेवर उसे बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि रशीद को कुछ ना हो। अगले दिन रशीद को होश तो आ गया, मगर उसे एक लंबे अरसे तक आराम करने को कहा गया। वो खुद ही इतना कमजोर हो गया कि बेड से नीचे पाँव भी नहीं रख सकता था। तीनों बेटे उसे अस्पताल भी लेने नहीं गए। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया। तो सुरैया ने नौकरों को भेजकर रशीद को घर बुलवाया। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी, लेकिन रशीद के कमरे में कोई उसका हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाजें आ रही थी। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए रशीद के कमरे में आ रहे थे। ये देख रशीद की आंखें भीग गईं। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन सुरैया उसके पास से उठी तो रशीद इशारे से पानी मांग रहा था। उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, रशीद के लिए पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम हर वक्त पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? तुमसे कहा तो था मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने का इंतजाम करो। बूढ़ी को पानी लेना होगा तो खुद आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा होकर वापस किचन की तरफ मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को तनख्वाह भी वही दिया करती थी, इसलिए हुक्म भी उसी का चलता था। बहू की बात सुनकर सुरैया भी हक्का बक्का रह गई। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था, बेटे और बहू उनके पास शर्मिंदगी की वजह से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। रशीद बार बार पानी मांग रहा था। सुरैया घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भर कर ले आई। तभी शहबाज कमरे के अंदर आया। उसके साथ काले रंग का कोट पहने एक वकील भी था। वकील साहब ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, जल्दी पेपर्स पर साइन करवाएं, मेरे बहुत से काम सिर्फ इस वजह से फंसे हुए हैं। शहबाज कहते हुए अंदर आया और अपने बाप से बोला, अब्बा जान, अब तुम थोड़े ठीक हो गए हो, तुम्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। रशीद एकदम चौंका, किस तरह के पेपर्स पर साइन करने हैं? उसने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा। तो शहबाज ने एकदम अपना सर उठाया और गुस्से से बोला, अब तुम बिस्तर पर पड़े हो, मौत सिर्फ तुमसे चंद कदम के फासले पर है और तुम्हें ये पड़ी है कि मैं तुमसे किस पेपर्स पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते अभी इस दुनिया की चाहत को? क्या मरकर भी इस प्रॉपर्टी को अपने साथ ले जाओगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो जाए और मैं इसे ठीक तरीके से चलाऊं। न जाने तुमने कैसे कैसे लोगों को भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान करवा रखा है। ऊपर से तुम न जाने लाखों रुपए हर महीना बेकारियों के लिए क्यों भेज देते हो।
ठेका ले रखा है हमने उन यतीमों को पालने का। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और हमारी जान छोड़ो। शहबाज की बात सुनकर रशीद के हलक से कोई आवाज़ ना निकली, मगर सुरैया को बहुत गुस्सा आया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने बाप से? देख नहीं रहे कि वो पहले ही कितना बीमार है और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ उनकी है, तुम लोगों में से किसी की नहीं? इतना सुनते ही शहबाज गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। फराज और आबिद से भी कह दूंगा कि वो भी फैक्ट्री ना जाएं। फिर मैं देखता हूँ कि अब्बा जान किस तरह इस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तुम जाकर बैठ जाओगी फैक्ट्री में। 2 वक्त की रोटी के लाले ना पड़ गए तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज ने गुस्से से कहा तो सुरैया दंग रह गई। सुरैया ने हाथ उठाकर मना कर दिया, उस वकील को कहो यहाँ से चला जाए, मेरा अपना वकील है, आज शाम में उसे बुला लूंगा, जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने होंगे। ये सुनकर शहबाज के चेहरे पर खुशी फैल गई, तो आखिरकार अब्बा जान मान ही गए फैक्ट्री मेरे नाम करने को। वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया तो रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे अरे वकील साहिब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतजार करवाया है। शहबाज लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील संजीदगी से रशीद के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बना लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ अब्बा जान के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। शहबाज ने अपने हाथ में ली हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की तरफ बढ़ाई तो वकील ने कहा, किसी पेपर की कोई जरूरत नहीं है, रशीद ने पहले ही सारे पेपर्स बना रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया ही सिर्फ इसलिए है कि मैं वो सारी चीजें आपके सामने रख सकूं। वकील साहब ने सख्त लहजे में कहा तो शहबाज समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या अब्बा जान ने पहले सब चीजें हमारे नाम कर दी? मेरे नाम पर क्या क्या है? मुझे तो ये घर चाहिए, शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है। शहबाज ने खुशी से चौंकते हुए कहा तो फराज बोला, अरे ऐसे कैसे, ये कोठी तुम ले लोगे, हमारा भी हिस्सा है इस घर में। तो शहबाज चिल्लाकर बोला, अब्बा जान की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसलिए वो तो मेरे ही नाम होगी। तुम कितना कारोबार संभालते हो? आबिद ने झिंझलाकर कहा। शहबाज भाई, मैंने खुद देखा है तुम्हें अकाउंट में गफला करते हुए और मोटी मोटी गट्टियां लाकर भाभी को देते रहते हो, इसलिए तो तुमने DLF में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है। तुम छुप छुप कर अब्बा जान की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब्बा जान की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर होगी। रशीद खामोशी से ये सब देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया, चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया तो वकील ने बोलना शुरू किया। जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो रशीद की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बना ली थी। इस वसीयत के मुताबिक ये घर और फैक्ट्री सुरैया के नाम पर है, उनकी मर्जी से इस जायदाद की तकसीम होगी, लेकिन अगर वो ना चाहे तो इस फैक्ट्री और घर में से तुम एक ईंट भी उठाकर अपने नाम नहीं कर सकते, बल्कि अगर वो तुम लोगों को इस घर से निकालना चाहे तो अभी और इसी वक्त निकाल सकती है। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो शहबाज समेत सबको सांप सूंघ गया। ये सब क्या है अब्बा जान, तुमने हमारे नाम पर कुछ भी क्यों नहीं रखा? शहबाज चिल्ला उठा तो रशीद मुस्कुराते हुए बोला, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे दिया था। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की इजाजत दी, कारोबार में हिस्सा दिया, लेकिन तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाते चले गए, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में सेहतयाब हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। रशीद ने बमुश्किल अपनी बात पूरी की तो तीनों भाई सर पकड़कर बैठ गए, मगर अब रशीद और सुरैया उन तीनों पर कोई रहम नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने रशीद के हुक्म पर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से वो सब अपने घर आए तो धूल और मिट्टी ने उनका इस्तकबाल किया। आज तीनों भाइयों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी।